Good evening, everyone. I hope my AV is clear. All right. So, if it is clear, then let me know. Okay. All right. So, good evening, everyone, and welcome to Current Affairs Weekly Roundup session. Let's have some questions. I hope you guys are doing current affairs on a regular basis. Okay. So we have some participants who have joined in, and still some people are joining in. So we'll wait for another a minute or so, and then we'll start the session. So you guys are following news? Are you guys following news, current affairs on a daily basis, reading newspapers whenever you can, reading some articles? So newspaper reading has immense impact on your preparation. Not just the current affairs, you get a lot of current affairs and a lot of information from the newspaper, but also it kind of enhances your vocabulary. So vocab section, English grammatical sentence, and also many articles, many passages that you get in the examination. Sometimes they're directly picked from the editorial sections of the newspaper. All right, or a leading newspaper. So it's imperative that you read newspapers, or not in its entirety, but at least let's just say the editorial part of it. All right, so that would help you immensely. So if you're wondering where to start from or which newspaper to begin with, you can either go with Indian Express or the Hindu. You can go with either newspaper, and between the two, I would suggest my preference would be Indian Express. You can start with the language, the formation is pretty on the lighter side, and the content, the Indian Express newspaper. So I find better. That is my preference, but you can choose either the Hindu or the Indian Express. Either is good. All right. I no need to buy a physical one. If you can, then well and good. But you can also subscribe online version. You can on the app. Okay, so you can take this online version for the entire year, and you can read on the go on your mobile phone. So that would be much convenient rather than carrying a physical newspaper every day. All right. So we have some people joined in today. Okay. So without any further ado, let's just start with the class. Let's just begin. So if you guys, let me know if you guys are facing any problem. Okay. Sushant is asking Hindustan Times. Uh, Sushant, Hindustan Times is not. It's a good newspaper, but uh, when we talk about newspaper in the perspective of your preparation for your examination, then I would say anyone would suggest who's into this domain would suggest the Indian Express or the Hindu, because the content when compared for your preparation for examination, it's on the higher side. No offense to any newspaper, all newspapers are good, all papers are good, but when you see it through the lenses of examination preparation, then Indian Express and the Hindu. Okay. So thank you, Priyansh. Thank you, Keshvi. Okay, thank you, Keshvi. Okay. Hi, Gurnoor. Hi. I hope everything is going well. आप लोग अभी मेरे ख्याल से हाफेलीज से जूझ रहे हो, दो है ना, दो हाथ कर रहा है हाफेली से। कुछ के खत्म हो गए हैं, कुछ के चल रहे हैं, और कुछ के भी खत्म होंगे थोड़ा टाइम में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने हो गए अच्छा हुआ, आई होप। तो अभी हाफ एलिस पे जोर ज्यादा था, अभी थोड़ा सा हाफ एलिस खत्म होंगे, तो काइंडली कम बैक टू योर आईपीएम प्रिपरेशन फॉर ऑन योर सीयूटी प्रिपरेशन, ऑन योर कैट प्रिपरेशन। ओके, सो दैट इज इंपेरेटिव, ज्यादा ब्रेक होना नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स सितंबर 21st 2023 वीकली करंट अफेयर्स राउंड अप। ऑलराइट, सो first question to everyone. All right, the first question that we have is, which among the following has become the largest export partner of Bangladesh? तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन बन गया? मतलब बांग्लादेश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी वाली कंट्री में आता है? इज इट चाइना, इज इट इंडिया, इज इट जापान और वियतनाम? तो इनमें से कौन सा है?
Shruti, I would request you to answer in the chat section. Yeah, Shruti. Okay, so we have Gurnoor's answer, Sushant's answer, Siddhant, Kaishvi, Ishita, Guntas, Dikshika. Okay, Shruti का भी आ गया, ठीक है. तो अलग अलग आ रहे हैं. Some people are going with B part, some people are going with Radhika, I guess C part, some people are going with A. That's a very solid guess, very good guess. बांग्लादेश का सबसे बड़ा पार्टनर कौन बन गया है? ठीक है, आप बोलोगे बांग्लादेश से हमें क्या चिंता करनी है, हर कंट्री का अपना एक बड़ा पार्टनर होता है एक्सपोर्ट का. तो बांग्लादेश से हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता ये है क्योंकि आंसर इंडिया है. द आंसर इज इंडिया. तो वहां की तारे घूम के हमारे पास जुड़ती हैं. तो इंडिया इंडिया जो बन गया है बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर. इसमें खुशी की कोई बात नहीं है क्योंकि हम बांग्लादेश के एक्सपोर्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम वहां से कर, उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ पे आ रहा है. तो मजा तब होता जब हम सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किसी को दे पाते. पर बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट ले रहे हैं, उनका इंपोर्ट करवा रहे हैं. तो ये अच्छी बात ये है कि हमारे उनके टाइज अच्छे हो रहे हैं. जहाँ पे इकोनॉमिक टाइज अच्छे होते हैं ना, जहाँ पे आपके और किसी कंट्री के इकोनॉमिक टाइज अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे पंगे होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है. अब देखो, चाइना कभी भी किसी से डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता. यूएस कर लेता है. यूएस मिडिल ईस्ट में घुस गया, अफगानिस्तान में घुस गया, यूएस तबाह कर देता है. लेकिन चाइना कभी डायरेक्टली हमला नहीं करेगा. पीछे से कुछ भी करता रहेगा लेकिन डायरेक्टली हमला नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसे मालूम है उसका मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया भर में, पैसे आ रहे हैं. ठीक है, बिजनेस आ रहा है. ठीक है, तो उसको हर्ट नहीं करते. तो चाइना और जापान उनका बांग्लादेश के पहले बहुत बड़े पार्टनर थे, लेकिन अभी इंडिया ने टेक ओवर कर लिया. तो अच्छी बात ये भी है इंडिया के बारे में कि इंडिया के पास, लोगों के पास पैसा आ रहा है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास हमें चीजें चाहिए. ठीक है, तो और हमारा रिलेशन बन रहा है बांग्लादेश से, अच्छी बात है. और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से 1971 में टूट के बाहर निकला था. नाउ बांग्लादेश इज ए मच 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 बेटर परफॉर्मिंग इकोनॉमी देन दी देन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान से अलग होके निकले थे, लेकिन 71 में निकले थे, और उनसे कम समय में उनसे बड़ी मार्केट बन गए हैं, बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं. ठीक है, बड़ी पावर बनते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस पूरी की पूरी सिचुएशन में. ऑल राइट, तो आई होप समझ में आ गया होगा. और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं. तो ये आप देखिए, डिस्क्रिप्शन थोड़ा पढ़ लेना, मैं आपको ये भेज दूंगा. ठीक है, चलो. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अगला वाला देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे. फर्स्ट इज डन, लेट्स सी नंबर 2. एवरीवन, नंबर 2. ऑलराइट, तो नंबर 2 वी हैव नेटोज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर इज कॉल्ड. तो कोल्ड वॉर के टाइम के बाद से नेटो की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? जब तक आप लोग आंसर लगा रहे हो तब तक बता देता हूँ कि नेटो क्या है और कोल्ड वॉर क्या चक्कर, इसको नहीं पता. कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस एक पावर बन के निकला था, और सोवियत यूनियन जो आज का रशिया बन गया वो एक पावर बन के निकला था. ठीक है, तो यूएस ने के अपने फ्रेंड्स थे, सोवियत यूनियन के अपने फ्रेंड्स थे. तो इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही थी, मतलब हॉट वॉर, यानी कि मिसाइल और ये रॉकेट और ये सब नहीं चल रहा था. इनके बीच में कोल्ड वॉर थी. एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे ये लोग, लेकिन यहाँ के स्पाइस वहां जाते थे, वहां के स्पाइस यहाँ. जेम्स बॉन्ड स्टाइल, यस, जेम्स बॉन्ड स्टाइल. तो वो लोग जाते थे और एक दूसरे की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर रहे हैं, कंट्री में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, सीक्रेट्स ले रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कोल्ड वॉर. ठीक है, तो ये दोनों के बीच चल रही थी. और नेटो जो है, नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आप ये समझे, यूएस और यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप के उसके जो फ्रेंड्स हैं, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब हो गया, तो जर्मनी हो गया, तो इनका एक बहुत तगड़ा मिलिट्री ग्रुप है, बहुत तगड़ा मिलिट्री ग्रुप है. और इसका आर्टिकल 5, इस ग्रुप का एक आर्टिकल 5 है. आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है, नेटो का आर्टिकल 5 है कि हम अटैक ऑन एनी वन शैल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ देम. मतलब एक पे अटैक किया है ना, उस ग्रुप का किसी एक मेंबर पे आपने अटैक कर दिया, ये माना जाएगा कि सब पे अटैक हो गया, और सब उसी इंटेंसिटी के साथ आएंगे. ठीक है, तो इसलिए नेटो से कोई पंगा लेता नहीं है. नेटो बहुत खतरनाक है क्योंकि आपने किसी एक पे हाथ डाला सब आ जाएंगे. ठीक है, और रशिया यूक्रेन की वॉर का भी नेटो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, बिकॉज यूक्रेन नेटो में जाना चाह रहा था, रशिया ने साफ मना किया था कि नेटो में नहीं जाना. तो नेटो का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में है. तो जो एक्सरसाइज है, अब नेटो एक्सरसाइज इसलिए की है क्योंकि रशिया धीरे धीरे अपनी पावर दिखा रहा है, बढ़ा रहा है. तो ये भी अपनी पावर दिखा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं भाई, और डर के रहो हमसे. ठीक है, आई होप आपने आंसर लगा दिए होंगे. मेरे पास आंसर्स अभी कम लोगों के आए हैं. नॉट एवरीवन इज आंसरिंग. आई वांट टू नो व्हाई. बिकॉज क्लास में ऐसा मैंने बताया है कि यार जीके क्लास में, करंट अफेयर्स में आगे बढ़ के आंसर लगाने हैं आपने, कभी टेंशन लेनी नहीं है. A B C D इन्वॉल्व जरूर करना है अपने आप को. ठीक है, तो चुपचाप नहीं बैठना.
ओके, सो कृतिका का आंसर आया, सुशांत का है, कांची, कैशवी, नमशेद, देन वी हैव इशिता, ठीक है, राधिका, नवनीत, सबके आगे आगे, ठीक है, बढ़िया। ऑलराइट, तो सबके आंसर्स आ गए हैं। एंड कुछ का ए है, कुछ का सी है, कुछ का बी है, अलग अलग आए, ठीक है। कांची सिंह शोड इन ओपेनहाइमर, चलो बढ़िया है, मूवीज काम आई जीके में, ठीक है। ओके, यस, तो करेक्ट आंसर गाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेडफास्ट डिफेंडर। द ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टेडफास्ट डिफेंडर इज द करेक्ट। सुशांत पूछ रहे नेटो का फुल फॉर्म, नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ मिलिट्री सेटअप, इट्स अ मिलिट्री सेटअप, ठीक है। ये कोल्ड वॉर के बाद बना था, सोवियत यूनियन के डर से कि वो अटैक ना करते हम पे, ठीक है। तो ग्रुप बना लिया उन लोगों ने, वो हिंदी में कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, तो सबने संगठन बना लिया कि भैया साथ में रहेंगे, तो कोई पंगा लेगा नहीं हमसे। वेरी पावरफुल ग्रुप, वेरी पावरफुल ग्रुप, ठीक है। ओके, चलो सबका आंसर्स आ गया। ओके, फुल फॉर्म है नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन, सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so Kashvi has asked me a question कि what is the difference between Cold War and proxy war? देखो, कोल्ड वॉर मतलब ये होता है, जो मैंने आपको बताया, जो बहुत बड़ा एग्जांपल था, रशिया और सॉरी सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में आपस में बात डायरेक्टली बात नहीं कर रहे थे, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ नहीं है, बस दोनों अपने अपने मतलब अकड़ में बैठे हुए हैं, और वो स्पाइस भेज के उसका नुकसान कर रहे हैं, ये स्पाइस भेज के इनका नुकसान कर रहे हैं, तो आपस में नुकसान नुकसान कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली लड़ नहीं रहे, जैसे कोल्ड वॉर कहते हैं। लड़ाई हो रही है, लड़ाई मतलब मिसाइल विसाइल चल नहीं रही, लेकिन नुकसान कर रहे हैं, तो वो वैसी लड़ाई हो रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं वगैरह जो, तो वैसे लड़ाई हो रही है। और प्रॉक्सी वॉर का मतलब जैसे पाकिस्तान कश्मीर में लड़ता है, खुद नहीं आएगा, पाकिस्तान खुद कश्मीर में नहीं आएगा, वो अपने जिहादी ग्रुप्स को भेजेगा, वहां पे जो लोग हैं उनको बोलेगा अरे इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, जाओ जाओ तुम लड़ाई लड़ो वगैरह। तो वो लोग अपने बंदे डायरेक्टली नहीं भेजते, वो टेररिस्ट बनाते हैं और टेररिस्ट को भेजते हैं। तो टेररिस्ट एक्चुअली पाकिस्तान का एजेंडा ही पहुंचा रहे हैं आगे, इंडियन आर्मी पे अटैक करते हैं, वहां के लोगों को पे अटैक करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं इंडिया की पीस को। तो पाकिस्तान जिहादियों के जरिए इंडिया पे अटैक है, तो इट्स प्रॉक्सी वॉर, मतलब सामने खुद नहीं आएंगे, खुद सामने आएंगे, किसी और को भेजेंगे, लड़ाई होती है, इसमें लड़ाई होती है, ठीक है। तो प्रॉक्सी वॉर का एग्जाम्पल है कश्मीर में जो हो रहा है, और कोल्ड वॉर का जो हुआ था वहां पे, ठीक है। सुपर, ऑलराइट, चलो अभी अगला देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, पूरा क्वेश्चन कौन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, पढ़ लेना आराम से। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नंबर 3 गाइस। Alright, who has been appointed the chairman of Mastercard India? Mastercard India के चेयरमैन, इंडिया के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य, दिनेश कुमार खारा, इनमें से कौन है? अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट होगा ना, ये तीनों के तीनों बंदे एसबीआई के करंट चेयरमैन में से एक, और बाकी दो फॉर्मर चेयरमैन है, तो ये तीनों एसबीआई से एसोसिएटेड हैं बंदे, टॉप बैंकर्स। सबको पता है एसबीआई इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, ठीक है। तो एंड इसका टैगलाइन है बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। हमने सुन देखा होगा कभी एसबीआई के एड जब आती न्यूज़पेपर वगैरह में, तो बैंकर टू एवरी इंडियन ये एसबीआई का मोटो है, या इसका आप कह सकते हैं इसका स्लोगन है, ठीक है। तो सही बात है, बैंकर टू एवरी इंडियन मतलब बहुत बड़ा बैंक है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, रूरल इंडिया में भी इसकी ब्रांचेस है, जहाँ आईसीआईसी वगैरह प्राइवेट बैंक्स की नहीं होती, तो इसकी रीच बहुत ज्यादा है। तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। Okay, so we have people going with A, C. Okay, Kushika, Kanchika, Kritika, ठीक है, सुशांत, then we have दीक्षिका, then we have खुशी। Okay, तो A पे जा रहे हैं आप लोग, गुरनूर का भी आ गया, अगम का भी आ गया, सिद्धांत। ओके, तो A, B और सम पीपल आर गोइंग विद सी, तो नोबडी इज गोइंग विद डी, मतलब सबको मालूम है कि नन तो नहीं हो सकता, गेस लगा रहे हैं सब लोग जा रहे हैं ए बी सी में। ऑलराइट, तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जैसे मैंने बता दिया फॉर्मर चेयरमैन थे एसबीआई के, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री में इंडिया में इनका। और अरुंधति भट्टाचार्य भी पहली फीमेल थी जो एसबीआई की चेयरमैन बनी थी, अभी इन्होंने भी ग्लास सीलिंग तोड़ी थी, ठीक है, तो वेरी इंस्पिरेशनल। एंड दिनेश कुमार खारा जो है ये करंट वाले हैं, ये अभी वाले हैं, तो कहीं नोट कर लो, अगर बैठे हो नोट्स लेके बैठे हो तो अच्छी बात होगी, आप लोग कोई नोटबुक लेके बैठो क्लास में, बिकॉज बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी हो जाती हैं जिसपे क्वेश्चन बन जाता है,
है ना। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें निकल जाती हैं बाहर। क्वेश्चन कुछ और है लेकिन हम बात कुछ और भी कर सकते हैं कभी कभी। तो वो चीज़ें आप कहीं नोट डाउन कर लेना। तो दिनेश कुमार खारा इज द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ओके, चलो। तो इसके बारे में बात कर ली एंड दिस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आराम से आप लोग पढ़ लेंगे बाद में। चलो, सो विल सी। नंबर 3 इज डन। लेट्स सी नंबर 4। नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, चलो। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच स्टेट हैज रोल्ड आउट ₹4 लाख इंश्योरेंस कवर टू गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स को 4 लाख का इंश्योरेंस कौन से स्टेट ने दिया है। सबसे पहले तो स्टेट की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे गिग वर्कर्स होते क्या है। ठीक है, जब तक आप लोग समझ के आंसर लगाइए अपनी समझ से, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स का मतलब होता है पार्ट टाइम वर्कर्स। ठीक है, या ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पार्ट टाइमर्स ज्यादा होते हैं, पार्ट टाइम पे चलता है। ठीक है, वैकेंसीज आती हैं और पार्ट टाइमर्स के लिए मोस्टली होती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका जो हमारे डिलीवरी करते हैं स्विगी जोमेटो वाले। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको परमानेंट नहीं लेते, इन द टेम्पररी, कुछ महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए थोड़ा बीच में कर लेंगे। तो जो फ्रीलांसिंग काम होता है, फ्रीलांसिंग वो वाला काम होता है व्हेन यू आर स्किल्ड एट इट, आपको आता है काम लेकिन आप परमानेंट नहीं कर रहे इसको। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट आता है आप लेते हैं, तो इसे कहते हैं गिग वर्कर। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विगी जोमेटो वाला। बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं पाइथन के प्रोजेक्ट्स वगैरह, जावा। ठीक है, आईटी अगर आपको आता है, काम आता है आपको, प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग शॉर्ट फिल्म बना देते हैं, कोई सिंगिंग कर लेते हैं, तो ये सब गिग वर्किंग में आ जाता है। ठीक है, परमानेंट कुछ काम नहीं चल रहा लेकिन कहीं परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं हो, काम चल रहा है पर परमानेंटली एम्प्लॉयड नहीं हो, पर आप ऐसे छोटे मोटे काम अपने स्किल बेस पे उठाते रहते हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं गिग वर्कर्स, और ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी। ऑलराइट, ओके। तो 4 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया, तो कौन सा वाला आंसर है, क्या लग रहा है, विच स्टेट इज काइंड इनफ to do so and who's thinking in this direction. So Agam is going with, okay, A, then Nikita Karnataka, Kavya also C, then we have Shruti going with B, Shita Karnataka, Navneet का भी आंसर है, Shrutika, Kanchi, Kashvi, yes, without contractual agreement। ठीक है, मतलब फुल टाइम नहीं होंगे, करेक्ट। नमशुद का भी आ गया, हार्दिक वगैरह। ठीक है, तो बी सी डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया, सही है। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट ये है कि जितने बंदे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी क्लास में, उतने रिप्लाईज नहीं आ रहे। तो रिप्लाईज कम आ रहे हैं और पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं, तो ये इट्स नॉट ए गुड साइन। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। यार आप कोई टेंशन नहीं, डाल दो ABCD को, कौन रिकॉर्ड रख रहा है ना कोई। तो इट्स मोर अबाउट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, चलो। तो करेक्ट आंसर है इसका, जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पार्ट, कर्नाटका। तो कर्नाटका इज द स्टेट जिसने 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर निकाला है गिग वर्कर्स के लिए। एंड यहाँ पे आप देखिए 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस में और 2 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस में। तो एक्सीडेंट का भी इंश्योरेंस और लाइफ का भी इंश्योरेंस, ये बहुत ही मुश्किल से ट्रैफिक का, इंडिया का ट्रैफिक जो है पता ही सबको कैसा है। तो उस ट्रैफिक में भी हम लोग फटाफट ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं, देन वी आर लाइक भैया कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, जल्दी आओ ना वगैरह। हम थोड़ा सा अगर बंदा लेट हो रहा तो गुस्सा भी करते हैं, ऐसा थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए। हमें पता है कि ट्रैफिक में बंदा आ रहा है, मुश्किल हो जाती है, बारिशें होती हैं, ये सब होता है, तो उन सब के बावजूद भी वो लोग काम करते हैं, अच्छा है। ठीक है, कभी पिज्जा अगर आपका 30 मिनट से लेट हो तो लड़ना मत उस बंदे से। ठीक है, क्योंकि उसकी सैलरी से जाएगा पैसा। अगर वो 30 की जगह 35 मिनट में आ गया, 40 मिनट में आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, दिल बड़ा करो 10 मिनट भूखे रहे, कोई टेंशन नहीं है, वरना वो बंदे को फिर अपनी सैलरी से ही हैज टू पे। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट जॉब बाय द वे। ठीक है, कोई आसान काम नहीं है। या कैश भी करेक्ट है। सो इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन दे यूज टू डिलीवर, यस, करते थे। ठीक है, एवरी वर्क इज लिटिल टफ, जस्ट हैव टू बी कंसिडरेट। ठीक है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स द आंसर्स कर्नाटका। ठीक है, समझ में आ गया गिग वर्कर कौन सा, समझ में आ गया क्या होता है। चलो, लेट्स नेक्स्ट वन, नंबर 5 पे आते हैं। ऑलराइट, तो इसरो कहानी में आ गया। इसरो ने क्या किया है, अपनी एआई कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के लिए उसने किसी एक कंपनी के साथ टाई अप किया है क्लाउड टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज में, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद इसरो टू एनहांस एआई कैपेबिलिटीज विद क्लाउड टेक्नोलॉजीज। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी भी और साथ में एआई कैपेबिलिटीज भी, तो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, एप्पल है, किसके साथ किया है इसरो ने। ठीक है, सही, अलग अलग आंसर्स हैं।
And we have okay, let's see. Okay. So Amazon, Dikshika, Amazon, Kushi, Apple, Tanisha saying Amazon, Radhika going Microsoft, Gurnur Amazon, Navneet going with Google, Microsoft, Kuntas going with Apple. ठीक है, मतलब आप लोगों ने सबके सबका नाम ले लिया आपने, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, एप्पल, किसी को छोड़ा नहीं आपने, सबको सब लगा दिया आपने, बढ़िया। किसी को बुरा लगा ना, किसी को बुरा लगे ना, नो बडी शुड फील लेफ्ट आउट कि हमें सेलेक्ट नहीं किया है, सबने सब सेलेक्ट कर लिया, बढ़िया है, बड़े दिल के लोग हो आप, किसी को अकेला छोड़ते नहीं हो। तो इसरो ने जो एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ बढ़ाने के लिए जो साइन किया है, जो एग्रीमेंट साइन किया है या पार्टनरशिप की है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, Amazon। द करेक्ट आंसर इज Amazon। सो Amazon बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको पता है, सबको पता है, रिटेल तो सबको पता ही है, मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है, कुछ भी सामान वामान खरीदना है तो उसके लिए अमेजन पे चले जाते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी हैं। तो जो क्लाउड वाला बिजनेस है ना, वो है AWS का, ठीक है। वो है AWS का, तो Amazon AWS, और ये क्लाउड टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, आप बहुत, जैसे कोई कंपनी है, उसका बट डेटा बहुत सारा है, बहुत सारे कस्टमर का डेटा है, डेटा वो आ रहा है, उसको अपडेट करना वगैरह वगैरह, ये एक अलग सरदर्द होता है। और कंपनी चाहती नहीं है रिक्रूटमेंट करे, लोगों का बिठाए, अलग से डिपार्टमेंट बैठाए और इसको मेंटेन करे, तो क्या बोलते हैं, यार हमें सिरदर्द नहीं पालना। तो जो क्लाउड टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होती है, उनको उनसे वो मतलब उनको एंगेज करते हैं, उनको बोलते हैं कि यार हमारा जो ये डेटाबेस का काम है ना, ये आप ले लो, ठीक है, हम आपके डेटाबेस पे अपना सब रखेंगे, आपको मेंटेन करना होगा, आपकी सिरदर्दी होगी सब कुछ, यू गाइस हैव, हम आपको ईयरली पेमेंट करेंगे, बट यू गाइस हैव टू मेंटेन एवरीथिंग, आपको करना होगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है। गूगल का भी है, इट्स कॉल्ड गूगल क्लाउड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी है। तो ये लोग अपने बड़े बड़े जो सर्वर्स हैं वो रखते हैं, देन हाँ करेक्ट, गुरनूर, वेब होस्टिंग सर्विसेज भी करते हैं, करेक्ट। तो समझ में आ गया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट के। पहले हर कंपनी अपने पास डेटाबेस बनाती थी, अब सब, हर कंपनी का इतना टेक्नोलॉजी होती नहीं है कि वो डेटाबेस बनाए, बंदे क्रूट करे रखें, तो उन्होंने बोला कि छोड़ो यार, कंपनी को देते हैं, वही मेंटेन करेंगे, उनसे पूछेंगे हम क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, वही मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर है इसका Amazon AWS, Amazon इज करेक्ट। जेफ बेजोस, हु डजंट नो हिम, ठीक है, 200 बिलियन वाला बंदा है भाई, कम नहीं हो 200 बिलियन, ठीक है। आई थिंक ही वाज द फर्स्ट मैन टू अचीव 200 बिलियन US डॉलर नेट वर्थ इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इन वैसे एक बंदे को कहते हैं मानसा मूसा, ऐसा इंटरनेट पे खबर चलती है ना कभी कभी, कि हु वाज द रिचेस्ट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड, कभी भी कभी भी, तो मानसा मूसा का नाम आता है, मानसा मूसा ऑफ माली, एक कंट्री है अपनी अफ्रीका में, तो उसका बंदा एम्परर था मानसा मूसा। तो ऐसा कहते थे, वो हज पे गया था बंदा, अपने पूरे काफिले को लेके गया था, और जब वो हज पे गया था तो उसने जहां पे भी वो रुका था, वहां पे उसने सोने की बड़े बड़े जो ब्रिक्स होती हैं वो लोगों में बांटी थी, ऐसी ऐसी बांटी थी, और इतना सोना लोगों के पास आ गया था कि वहां की इकोनॉमी बैठ गई थी, ठीक है। तो उसने अकेले गोल्ड प्राइसेस का रेट उस दौरान में इसने चेंज कर दिया था, तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, ठीक है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आज तक किसी ने किया नहीं। तो मानसा मूसा को मानते हैं पहला, ठीक है। और जॉन डे रॉकेफेलर US का बंदा था, अमेरिकन सिटीजन, उसे पहला बिलियनर मानते हैं, ही वाज द फर्स्ट बिलियनर रिकॉर्डेड हिस्ट्री, फर्स्ट बिलियनर, ठीक है। एंड जेफ बेजोस भाई 200 बिलियन वाला पहला बंदा, ठीक है। हमारे मोटा भाई पीछे नहीं है, मुकेश अंबानी जी, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन जिस तरह से इन्वेस्टमेंट अभी आ रही है, तो आई होप अगले 20-25 साल में विल हैव अ लॉट ऑफ इंडियंस, ठीक है। बहुत सारे इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स भी बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं आगे। तो देखते हैं आगे, सोने की चिड़िया, राइट, दोबारा नाम आने वाला हमारे पास। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, सो नंबर 5 इज डन। सो ये उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 देखते हैं। ऑलराइट, नंबर 6 क्वेश्चन ये पूछ रहा है गाइस कि 2024 में डीजल कार की प्रोडक्शन बंद करके कौन सी वाली कंपनी ये बोल रही है कि हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार मेकर बनेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? 2024 में डीजल कार प्रोडक्शन को कंप्लीटली बंद करके, डीजल वाली कार नहीं बनाएगी ये कंपनी, बोल रहे हैं हम पूरी की तरह इलेक्ट्रिक कार मेकर बनेंगे। तो ये कौन सी वाली कंपनी है? टोयोटा, BMW, वॉल्वो या महिंद्रा? ओके, सो इशिता गोइंग विद एन आंसर, हार्दिक का भी आ गया।
दीक्षिका, ओके, निकिता, राधिका, ठीक है ठीक है, कैशिका भी आ गया। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, महिंद्रा, कौन बोल रहा है कि हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक जाएंगे? कौन बोल रहा है हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक जाएंगे? तो आंसर्स आ गए हैं सबके। ऑलराइट, तो इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। ओके, तो करेक्ट आंसर है भैया, इनकी बसें बड़ी फेमस हैं, ठीक है, इंडिया में चलती भी हैं बसें। और गाड़ियां भी, लग्जरी गाड़ियां भी इनकी बड़ी हैं, ठीक है। इन बहुत सारी लग्जरी बसेस का जो ट्रैवल बसेस होती है उनका नाम ही पड़ गया है कि वॉल्वो की बसें हैं भाई, वॉल्वो, है ना। क्योंकि वॉल्वो की बस है हमारे पास, उस वाली सर्विस के वॉल्वो, तो आंसर है वॉल्वो। तो बसेस के साथ साथ ये गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है, और बहुत प्रीमियम सेगमेंट की बनाते हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू, मर्क, मर्सिडीज वगैरह की गाड़ियां, ऑडी की गाड़ियां, तो उस सेगमेंट की बनाते हैं। और आई एम श्योर सबने रोड्स पे देखी होंगी वॉल्वो की गाड़ियां। तो प्यारी गाड़ियां, बढ़िया गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां। ऑल राइट, ठीक है। पर आपने इनका ऐड उतना देखा नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट, ओके। और ना इन पे कोई गाने सुने होंगे कि वॉल्वो की गाड़ी लेनी है। ज्यादातर जो गाने बनते होते हैं फिलहाल आजकल थार पे बन रहे हैं ना, थार हॉट फेवरेट आजकल। ओके, सो वॉल्वो इज द करेक्ट आंसर, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बनने वाली है। और डीजल कार को देखो, अभी इसमें सीन ये है ना कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो सब लोग फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, वो सबके सब फॉसिल फ्यूल्स को हाथ नहीं लगा रहे हैं, एंड दे आर गोइंग अवे फ्रॉम इट। और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वगैरह वगैरह। तो मोस्टली दे आर गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, वो नंबर वन ऑप्शन है। फिर एथेनॉल पे जा रहे हैं, फिर अलग अलग फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स को मिला के कोई एक नया बना रहे, नया एक फ्लूइड बना रहे हैं, फ्यूल बना रहे हैं, उस पे जा रहे हैं। तो ये लेकिन अपना फॉसिल फ्यूल से दूर हटते जा रहे हैं। उसके दो तीन रीजन है। पहले रीजन तो बहुत बड़ा रीजन यही है, सबको पता ही है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, एग्जैक्टली यस। लेकिन दूसरा रीजन भी है कि हमारा जो ऑयल वगैरह है ना, वो मोस्टली मिडल ईस्ट से आता है। तो मिडल ईस्ट को बहुत पावर मिल गई है, तो वो बहुत ज़्यादा, है ना, इन्फ्लुएंस कर देता है तेलों के प्राइस वगैरह। तो ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से हर कंट्री के पास पावर आ जाएगी अभी। हर कंट्री खुद ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगी, बायो फ्यूल वगैरह, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, ठीक है, मोस्टली दे कैन डू। और आपको पता है, सबने इंटरनेट वगैरह पे खबरें देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, शॉर्ट्स देखे होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि दुबई जो है वो भी इन्वेस्टमेंट हब बनते जा रहा है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं अपने। और जो सऊदी है, ऑयल रिच कंट्री है सऊदी, एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान, आपको पता ही है, बहुत तेल है उनके पास, बहुत पैसा है। तो वो लोग क्या बना रहे हैं, वो उसको एक सऊदी अरेबिया को एक मेकओवर दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं सऊदी को, ताकि लोग आए सऊदी अरेबिया में। और क्योंकि मिडिल ईस्ट की हर कंट्री को पता है कि ऑयल की इंपॉर्टेंस आने वाले सालों में धीरे धीरे घटती जाएगी, और जितना पैसा ऑयल से कमाए उतना कमा नहीं पाएंगे। दे हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इसलिए दुबई उठ के निकल आया, सऊदी भी उठ रहा है। सऊदी कंट्री एक अलग सिटी बना रहा है, द लाइन, वो एक लाइन की तरह सिटी होगी पूरी, ठीक है, देखना इंटरनेट पे। आई थिंक हमने किया भी था एक क्वेश्चन उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चल रहा है आजकल दुनिया में, ऑलराइट। बहुत। और सऊदी आर इन्वेस्टिंग हेविली इन स्पोर्ट्स। दुनिया में स्पोर्ट्स में अपना भाई जो है, अपना पोर्चुगल वाला रोनाल्डो, कहाँ खेल रहा है अभी? खेल रहा है ना अपना सऊदी में, ठीक है। अपने मेसी को बुलाया था, मेसी गया नहीं, मेसी ने बोला कि भैया मैं मायामी जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ। लेकिन दोनों को आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर वो सऊदी टूरिज्म के ऊपर एक भी पिक्चर डालते हैं तो दे आई थिंक $10 million उनको मिलते हैं हर एक पोस्ट के ऊपर, ठीक है। 10 मिलियन या 1 मिलियन, ऐसा कुछ एक अमाउंट है जो उनको हर टाइम मिलेगा हर एक पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ये नेमार के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े प्लेयर्स के साथ। तो अलग अलग पैसे वो डाल रहे हैं स्पोर्ट्स में, ऑलराइट। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, काइंडली रीड इट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। अगले साल रिपब्लिक डे पे किसको बुला रहे हैं? हु इज द चीफ ऑफ ऑनर, चीफ ऑफ गेस्ट, चीफ गेस्ट कौन है अगले साल? चीफ गेस्ट कौन है अगले साल इंडिया में, ये आपसे पूछ रहे हैं। रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आज ही की खबर है, इट्स वेरी गर्मा गर्म खबर, ठीक है। ऋषि सुनक कौन है? यूके के प्राइम मिनिस्टर है। जो बाइडेन, सबको पता ही कौन है। इमानुएल मैक्रोन, ये पता, फ्रांस। और जियोर्जिया मेलोनी, आई थिंक सबने रीलें देखी होंगी, ठीक है। तो बताइए आजकल इटली, यस इटली। तो G20 की रीलें सबने देखी हैं। G20 पे अलग अलग ये टॉप के वो हैं अपने बड़े बड़े कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, तो ये टॉप के हैं, तो सबने रीलों में देखा होगा। कम मिलते हैं, शेख हैंड सबके नाम पे लिखा होता है कि ऋषि सुनक वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑलराइट, तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? द करेक्ट आंसर इज रिपब्लिक डे पे जिनको इनवाइट किया गया वो हैं आपके जो बाइडन साहब, ठीक है, ऑप्शन बी, जो बाइडन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, वेरी नाइस। तो जो बाइडन को बुलाया। एंड बढ़िया है, ठीक है। जो बाइडन अभी G20 करके गए हैं।
फिर दोबारा आएंगे रिपब्लिक डे पे, तो उनसे कुछ और बातें भी करेंगे हम। और इससे पहले मोदी जी गए भी थे यूएस में, यूएस जाके उन्होंने फिर काफ़ी हम इंडिया के लिए काफ़ी डील्स वगैरह लेके आए थे पॉजिटिव। तो इंडिया का स्टैचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बहुत आगे ब्राइट फ्यूचर लग रहा है इंडिया का। लेट्स सी, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो ये पिक्चर है, लिटिल लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। ओके, ऑलराइट, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। चाचा चौधरी, साबू और बिल्लू, ठीक है, ये एक बहुत फेमस कार्टून कैरेक्टर, आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा या सब जानते हैं इनके बारे में, सुना तो सबने होगा। आपको बताना है इसके क्रिएटर कौन थे। इनके क्रिएटर कौन थे, ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरी, एग्जैक्टली। ठीक है, इनके क्रिएटर कौन थे। हार्दिक सिंह, आई हैव देम फ्रॉम अमरीक सुखदेव। हाँ, अरे वेरी नाइस। द कॉमिक्स, यस यस। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर पे एक ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। गुड मेमोरीज, गुड मेमोरीज, बचपन की अच्छी मेमोरीज है। ठीक है, तो हम श्योर सबने पढ़ा ही होगा। आजकल मेरे ख्याल से आपकी जनरेशन ने इतना पढ़ा नहीं होगा, पर ड्यूरिंग माय टाइम दीज वर हॉट फेवरेट्स। ये होता था, चंपक पढ़ते थे हम, टिंकल आता था एक, आई थिंक अभी भी आता होगा, बच्चे पढ़ते नहीं उतना। फिर चंद्रकांता, ठीक है, अमर चित्र कथा, अमर चित्र कथा आती थी, वो हम पढ़ते थे। चंदा मामा पढ़ते थे, और भी पढ़ते थे किताबें, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, ठीक है, हम श्योर आपने शायद तो सुना होगा, पर वो बहुत फेमस है। मोटू पतलू, यस 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 यस। लोटपोट, अरे वाह, पुरानी चीजें याद करवा दी इस क्वेश्चन ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है, सबने बहुत अच्छे आंसर्स लगाए हैं, सबके आंसर्स ऑलमोस्ट सही हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राण कुमार शर्मा। तो प्राण कुमार शर्मा जी, लेट प्राण कुमार शर्मा जी, सो ही इज नो मोर विद अस, तो ही वाज द क्रिएटर, ही वाज द ब्रेन्स बिहाइंड दीज कार्टून कैरेक्टर्स। और इनका जिक्र अभी इसलिए आया बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस कॉमिक्स के साथ टाई अप कर दिया है। तो अभी जो नेक्स्ट जो एडिशंस आएंगे कॉमिक्स के, वो इस तरह से आएंगे कि चाचा चौधरी इज टेलिंग द पीपल, कार्टून में अंदर अंदर कहानी में ही, कि गो एंड वोट, वोट फॉर इंडिया, या वोट फॉर एक्सरसाइज योर पॉलिटिकल राइट, कि वोट करो वगैरह वगैरह, जाओ वोटिंग करने जाओ वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने टाई अप किया है कॉमिक्स के साथ। तो आपको अगले, अगर आप पढ़ते हो कभी, तो आप देखना बिल्लू, साबू और चाचा चौधरी बच्चों को बोल रहे हैं कहानियों में कि जाके वोट करना। ठीक है, तो उसलिए इन्होंने टाई अप किया है, तो वहां से क्वेश्चन आया। ओके, चलो। ओके, आजकल के बच्चे डोरेमोन शिनचैन के फैन है। हाँ, आई नो आई नो, ठीक है, डोरेमोन शिनचैन के फैन हो आप लोग, क्योंकि बचपन में आपने मोस्टली वही देखा है। और जो आप बच्चे अभी स्कूल में हैं, स्कूल मतलब फिफ्थ सिक्स में, सेवेंथ एट में जो बच्चे हैं, थर्ड फोर्थ में बच्चे हैं, जो वाले सेगमेंट के बच्चे हैं, उनके फेवरेट आई थिंक मार्वल। ठीक है, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर मैन, आयरन मैन, तो वो उसके फैन है। तो हर जनरेशन का एक एक अपना सेट ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स है। ओके, सो आर के लक्ष्मण, कैशवी आर के लक्ष्मण, आपने सुना होगा माल गुडी डेज, कॉमन मैन। ठीक है, कॉमन मैन इन, हाँ, तो ये उसके क्रिएटर हैं, वेरी बिग पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट इंडिया में। ठीक है, वेरी बिग पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट इंडिया में, तो वो ये थे। तो उन्होंने बहुत कॉमन मैन, इंडिया में जो भी समस्या होती है, तो कॉमन मैन के जरिए वो एक पॉलिटिकल स्ट्रिप बनाते थे पहले। ठीक है, तो वहां से फेमस है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो ये डिस्क्रिप्शन, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं था, इसमें इतनी बात थी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रणथंबोर नेशनल पार्क, ओके, स्टैटिक क्वेश्चंस आ गए हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट में है। तो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, या पता ही है आपको। तो रणथंबोर जो नेशनल पार्क है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे आपको मिलेगा रणथंबोर नेशनल पार्क। सो वी हैव, ओके, ठीक है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ओके, राजस्थान, ठीक है ठीक है, छत्तीसगढ़। ओके, तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। मोस्टली मोस्टली एवरीवन इज गोइंग विद सी पार्ट, मोस्टली पीपल आर गोइंग विद सी पार्ट। देखते हैं सही है गलत है, लेट्स सी। एक दो को और आंसर आने देते हैं। ओके, तो या मोस्टली एवरीवन इज गोइंग विद, या, तो राजस्थान, राजस्थान इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर भाई, राजस्थान बिल्कुल सही है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है, वो राजस्थान में है। ठीक है, एंड मोस्टली अलग अलग एनिमल्स के लिए जाना जाता है, पर टाइगर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वंस। ठीक है, ओके,
ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल पार्क। सो साइलेंट वैली बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही यूनिक सा नाम है साइलेंट वैली। तो ये पूछ रहे हैं कि साइलेंट वैली कहाँ पे है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू गाइस, कि साइलेंट वैली कहाँ पे है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा या केरला, वेयर। ओके ओके, सो okay, so Anya is going with B part. Okay, then Hartika is going with Kerala. Then Tanisha is going with, अच्छा वो ए बी हो गया एक्चुअली, आप मान लेना वो ABCD लिखा हुआ है, वो लिखने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गया, बट समझ जाना वो ABCD ही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो साइलेंट वैली, ओके, तो आंसर्स आ गए हैं सारे मेरे पास, लेट्स सी कि क्या क्या आंसर्स हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, इट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, इन द पालक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। और साइलेंट वैली इज नॉट नोन फॉर एनिमल्स, वहाँ पे उसके लिए इट इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा, ठीक है, वेजिटेशन, मतलब वहाँ पे करीबन 1000 प्रकार के अलग अलग फ्लावर्स मिलते हैं, स्पीशीज ऑफ फ्लावर, तो 1000 प्रकार के वो मिलते हैं, लाइचन्स मिलते हैं, एलिगे मिलते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो वो सब वहाँ मिलता है, तो इट इज नोन फॉर दैट, ठीक है। चलो बढ़िया, आप लोगों ने गेस लगाया। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन, नंबर 11 देखते हैं, आ जाओ। ओके, तो नंबर 11 पूछ रहा है द मेन रिवर फ्लोइंग इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है। तो JNK में सबसे मेन रिवर इन चारों में से कौन सी वाली बहती है, ये आपने बताना है। इंडस है, झेलम है, चेनाब है या ब्यास है। तो इन चारों में से मेन रिवर कौन सी बहती है। लेट्स सी। ओके, तो आंसर्स तो आ गए हैं मेरे पास। यस कैशू, फ्लावर वैली, हेमकुंड साहब, वेरी नाइस। Navneet, Jhelum, Tanisha is going with A part, Gudnu is going with Indus, Agam is going with Jhelum, Indus, Jhelum, अच्छा, Jhelum, Indus हो रहा है। Hatika is going with a different answer, Chenab, okay. Gunta is going with Byas, okay. So ABCD तो हो ही गया फिर। Cash is going with Chenab, Nikita is going with Jhelum, okay. Radhika is going with Chenab, चलो ठीक है। Anya is going with Jhelum, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस, सॉरी, अलग अलग आंसर्स आ गए हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ। काव्या इज गोइंग विद बी पार्ट, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग में से मोस्टली जो बंदे गए हैं वो झेलम के साथ गए हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो झेलम बिल्कुल सही है, तो झेलम इज द करेक्ट आंसर। तो मेन रिवर जो निकलती है वो है आपकी झेलम रिवर, ठीक है। अनंतनाग जगह है, वेरीनाग स्प्रिंग है अनंतनाग में, वहां से ये स्टार्ट होती है। एंड देन अपना श्रीनगर से इसकी ट्रिब्यूटरी है, श्रीनगर से वो वहां से निकलती है, एंड देन इवेंचुअली ये लोग पहुंचती है, रिवर निकलती है आपकी POK में, ठीक है, POK में चली जाती है। तो JNK में मेन रिवर आप झेलम पकड़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नंबर 12। ओके, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो इंडिया में स्टार्ट नहीं होती, लेकिन इंडिया में पहुंच जाती है। तो वो स्टार्ट होती है तिब्बत में, वो स्टार्ट होती है तिब्बत में, और फिर चाइना, तिब्बत से निकलती है, फिर चाइना में जाती है, चाइना से निकलते निकलते फिर वो यू टर्न मारती है, नामचा बरुआ जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे उसके बाद वो इंडिया में एंटर करती है। तो जब वो इंडिया में एंटर करती है तो आपको नाम बताना है उसका, कि इंडिया में उसे क्या बोलते हैं जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है। और वो एंट्री होने के बाद जब थोड़ा आगे और जाती है तो और नदियां और आके मिल जाती हैं उसमें, तब जाके ब्रह्मपुत्र बनती है, ठीक है। तो आपको बताना है जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है नामचा बरुआ के एरिया से, तब क्या उसको बोलते हैं। ओके, सही है, बहुत अच्छे आंसर्स आ गए हैं। ओके, गुरनूर कांची गोइंग विद सांगपो, ठीक है। मुमताज गोइंग विद ए पार्ट दिहांग, ठीक है। काव्या गोइंग विद सांगपो अगेन, तनिषा ए पार्ट, ठीक है, बढ़िया। दिहांग, अच्छा, मोस्टली दिहांग दिहांग और सांगपो इन दो में आ रहा है। Disha, Dishika is asking very good question. Sir, what shall I do to increase the knowledge of these type of questions? दिशिका, एक ही चीज है, देखो जीके करना बहुत आसान है, क्यों, जीके में कोई फॉर्मूलाज नहीं होते, कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है, कोई आपको कुछ याद, मतलब कुछ पेन पेपर की जरूरत नहीं है, आप बस बैठो, बस बातें करते रहो, ठीक है। द मोर यू डू द बेटर यू गेट। तो जीके ऐसी होती है, आपको रोज और क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर ये, अच्छा, ये आंसर, बात खत्म हो गई।
मैथ्स की तरह नहीं, अच्छा ये आंसर क्यों आया, वो स्टेप क्या था, वो फॉर्मूला क्या लगा है, अच्छा ऐसे घुसना है क्वेश्चन में, ऐसे निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर। तो आपको अपना डोमेन, आप जब आप धीरे धीरे रोज कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन रोज करोगे ना, अलग 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 अलग, तो आपका जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप पोर्टल पे चले जाना, आईएमएस के पोर्टल पे, आईएमएस के पोर्टल पे, वहाँ वहाँ पे आपको जीके जोन है, वहाँ पे जीके जोन पे क्वेश्चंस है। बस रोज बैठ के करते रहो, हल्के हल्के फुल्के, रिवाइज करो करो रिवाइज करो, बस हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी मेहनत लगती है, रोज बैठना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन कर लो एवरीडे। ठीक है, एवरीडे रोज 10, हर महीने, पूरे एक महीने में अगर हर दिन 10 क्वेश्चन कर लिए, तो महीने के एंड में 300 क्वेश्चन कर लोगे यार आप। महीने के एंड में 300, और 2 महीने में 600, 3 महीने में 900 क्वेश्चन, बताओ यार। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। ओके, और पूरा साल आप करते रहोगे तो इमेजिन करो, आप 1,500 2,000 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है, चलो। तो करेक्ट आंसर गाइस इसका है ए, दिहांग। तो दिहांग इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सैंगपो, जिसने जिसने भी सैंगपो लगाया वो बहुत अच्छा आंसर लगाया। व्हाई? बिकॉज जब ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा तब बोलते हैं जब वो इंडिया में घुस जाती है और अलग अलग नदियों उसमें मिल जाती है, एंड में वो ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में घुसती है, देन इट इज कॉल्ड दिहांग। लेकिन इंडिया में घुसने से पहले उसका नाम क्या होता है? सैंगपो। यस, तनिषा करेक्ट है। तो तिब्बत, तो तिब्बत से निकलती है, इट्स कॉल्ड सैंगपो, फिर निकलती 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 चाइना में घुस जाती है, फिर भी सैंगपो है। फिर जब वो नामचा बरुआ एक जगह है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे कट मारती है, यू टर्न मारती है, जब वो घुसती है इट्स कॉल्ड दिहांग। और जब आगे बढ़ती है और नदियां मिल जाती है, नाम चेंज हो गया बिकॉज पानी चेंज हो गया, अलग अलग रिवर्स की वॉल्यूम आ गया अभी, तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया गैस लगाया, आई थिंक समझ भी आ रहा है। और इफ यू आर राइटिंग मेकिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में करते हैं हम 15 17 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप नोट बनाओगे तो बहुत सारी बातें बन जाती है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जब इंडिया में आया था कैलिकट में 1498 में, तब कैलिकट का राजा कौन था? ठीक है, इट लुक्स लाइक 6,40,000 केबीसी का क्वेश्चन लग रहा है ना ये वाला। 12,50,000 ये आपके लिए क्वेश्चन है ये। कैलिकट का राजा कौन था जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था? पोर्चुगल से आया था भाई, घूमते घूमते समोसाए लेने आया था। ठीक है, he wanted some spices, he wanted some other things, he came to India and he met whom? ठीक है, कैब्रल, आदिल शाह, अब्दुल माजिद और जैमोरिन। ठीक है, किससे उन वो मिले थे? ओके, सो अलग अलग आंसर्स आ गए हैं, आगे आगे अलग आंसर। कैशवी सेइंग सर ऐसे क्वेश्चन में बत्ती गुल हो जाती है, कोई बात नहीं कैशवी, आपकी गुल बत्ती को हम जला देंगे। ठीक है, गुल होने नहीं देंगे। बस ऐसे ही, बस बातें करते करते, क्विज करते करते ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अलग स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यार, नहीं, जितना स्ट्रेस लोगे उतना टेंशन है। एंजॉय करो, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। आप ये कर रहे हो, बहुत लोग इतना करते भी नहीं है। तो आपका कंपटीशन अपने बंदों के साथ है, उन जो बच्चे आपके साथ दे रहे हैं एग्जाम। ठीक है, तो बहुत लोग करते भी नहीं, आप लोग उनमें से जो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा उठ गए। ठीक है, तो जीके में, करंट अफेयर्स में, यू आर नॉट सपोज टू आंसर एवरी क्वेश्चन, हमेशा बोलते हैं यू आर नॉट सपोज टू आंसर एवरी, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हर क्वेश्चन का सही आंसर देना। जो आता है वो देना, और जो आता है वो तब बढ़ता है जब आपने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, रिविजन कर रखा है, तो बढ़ जाता है स्कोप अपने आप। ठीक है, ऑलराइट, तो आपने आंसर लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने आंसर अच्छा लगा दिया। कैब्रल भी किंग था भाई एक। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जैमोरिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जैमोरिन। जैमोरिन बंदा था कैब अपना कैलिकट में, ही वॉज द किंग देयर। वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा एक अलग अलग लेवल का बंदा था, मतलब बहुत गुस्सैल, वो बहुत ईगोइस्टिक बंदा था। ठीक है, और वो किसी को कुछ मानता नहीं था, तो वो पहुंचा कैलिकट में, जैमरून को बोला, रहे हमें ट्रेड वेड करना है। जैमरून ने उसको भगा दिया वहां से। ठीक है, मतलब लड़ाई वड़ाई हो गई थी, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी, पोर्चुगीज सोल्जर्स ने वहां के लोगों को मार दिया था। तो वहां के लोग जैमरून के पास पहुंचे, जैमरून ने अपनी आर्मी भेजी, और बहुत पंगा हो गया था। फिर जो वास्को डी गामा है, ये दुम दबा के भागा था वापस पोर्चुगल में। और वहां जाके इसने ये बोला कि अगर इंडिया में ट्रेड करना है तो तलवारें चाहिए भाई, हथियार चाहिए, ऐसे ट्रेड नहीं होगा, वहां पे हथियार चाहिए होता है। फिर बाद में डबल फोर्स से 2 साल के बाद दोबारा आए थे। तो फिर आपको पता ही है, उसके बाद पोर्चुगल, तो पोर्चुगीज वो द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स टू एंटर इंडिया, इंडिया में आने वाया सी रूट। सी रूट से आने वाले पहले बंदे थे, पहले फॉरनर्स थे, यूरोपियन पावर्स थे वो लोग। ठीक है, नॉट फॉरनर्स बट वो यूरोपियन पावर्स। ओके, तो आंसर है इसका
Zamorin. All right. Okay. And also the last one to leave. Yes, Kashfi. Thank you. सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, यूरोपियन पावर अपना सी रूट से, और आखिरी जाने वाले भी वही थे इंडिया में। सब अंग्रेजों के बाद गए थे वो लोग, आपको पता नहीं। 47 में अंग्रेज चले गए थे, लेकिन 1960 तक गोवा में कौन था? पोर्चुगीज। छोड़ा ही नहीं उन्होंने 1960 तक, 60 तक। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय चलाया था, उनको फिर भगाया वहां से। उसके बाद गोवा को हमने यूटी बनाया, फिर 87 में उसको स्टेट बनाया था गोवा को। ये गोवा पहले यूटी था, फिर 87 को स्टेट बनाया था। ठीक है, क्योंकि पोर्चुगीज वहाँ बैठे हुए थे, उनको भगाया फिर वहां से। ठीक है। ओके। सो सुशांति सिंह सर, आप बेस्ट हो, पूरा मोटिवेट कर देते हो। सर थैंक यू। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। एंड थोड़ा सा मोटिवेशन देने से अगर बात बनती, बहुत बढ़िया। बस करते रहो, सब कुछ हो जाता है। जहां आपने हिम्मत हार दी नहीं होगा तो वहां नहीं होता। अपने आप को बोलो सब हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जहाँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल जहाँ चलता है वहां पे काम बन जाता है। ठीक है। ऑल राइट। 1967, नॉट 1897 हार्दिका। 67, 1947 के बाद, आजादी के बाद अंग्रेज, सॉरी पोर्चुगीज वहां पे थे। ऑलराइट, तो 13 इज डन। लेट्स सी नंबर 14 पे आते हैं। ओके। सो मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में 1608 में कौन सा अंग्रेज आया था? ठीक है, अपनी टीम के साथ कौन सा अंग्रेज आया था? क्योंकि पहले पोर्चुगल वाले आ गए थे, और फ्रांस वाले भी आ गए थे। ठीक है, तो इंग्लिश आए थे, और इंग्लिश ने बोला कि हमें थोड़ा सा अपना, भैया हमें ट्रेड करना है। तो मुगल, उस समय मुगल एम्पायर था इंडिया में पावरफुल, और जहांगीर उसका राजा था, एम्परर था। तो जहांगीर के पास गए थे टीम लेके अंग्रेज, और ये कहने के लिए कि भैया हमें ना परमिट दे दो, आप ट्रेड परमिट दे दो, हमें परमिट चाहिए, और हमें थोड़ा सा इस पे काम करना है। ठीक है, हम आपको पैसे वैसे देंगे, हमें ट्रेड की परमिशन दे दो, परमिट दे दो, हमें फैक्ट्री लगानी है वगैरह वगैरह। तो वो बंदा कौन था? ओके। सो सिद्धांत, कृतिका, निकिता, हार्दिका, तनिषा, श्रुति, कुंता, स्कैशवी, सुशांत, सबके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं, बढ़िया। ओके, इशिता का भी आंसर आ गया है, नाइस। आन्या का भी आ गया है। ओके। सो मोस्टली मोस्टली अच्छा, अच्छा इसमें ऐसा है कि अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। सम आर गोइंग विद थॉमस रोज, सम आर गोइंग विद विलियम हॉकिंस, सम आर इवन गोइंग विद रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का तो अलग कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा बाद में आपको। द करेक्ट आंसर इज, गाइस द करेक्ट आंसर इज विलियम हॉकिंस। सो विलियम हॉकिंस वाज द फर्स्ट अंग्रेज। ठीक है, ही केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और उससे रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे ना, हमें हमें ट्रेड का चाहिए परमिट। और ऐसी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि जिस शिप में अंग्रेज इंडिया में आए थे, जिस शिप में अंग्रेज इंडिया में आए थे, उस शिप का नाम था HMS हेक्टर। गाड़ी है ना हेक्टर गाड़ी, MG की, ठीक है, वही हेक्टर, सेम स्पेलिंग सेम नेम। तो MG है, सॉरी MG, HMS हेक्टर। तो HMS हर मैजेस्टी शिप हेक्टर उसका नाम था, उसमें अंग्रेज आए थे इंडिया में। तो हेक्टर नाम के शिप में अंग्रेज आए थे, और देखो ट्रेड करने आए थे, राजा बन के चले गए थे। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, चलो अभी आंसर बता दिया मैंने, अब आगे वाला देखते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और है, यस। ओके, तो ये बिजनेस वर्ल्ड से क्वेश्चन आ गया है। द फेमस मैगी इज द ब्रांड डिराइव्ड फ्रॉम विच कंपनी? अगर बताना मैगी किसका, आई थिंक सबने इतनी खाई है मैगी, और लॉकडाउन में तो बहुत खाई होगी, स्पेशली आप लोगों ने, है ना? तो आई थिंक ये इट्स नो ब्रेनर। आई थिंक ये वाला सब बता ही देंगे आंसर, खट 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 खट। ओके। ओके। आई वॉज प्रिटी श्योर कि ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन कोई छोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ। सबके आंसर ये वाला सही है, सबका आंसर ये वाला सही है, और मुझे लग ही रहा था कि सब बिल्कुल सही बताएंगे, और आप एब्सोल्युटली करेक्ट, सबने सही बताया है। एवरीवन इज करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। गाइस द करेक्ट आंसर बताने की जरूरत है ही नहीं मुझे। इट्स नेस्ले, इट्स नेस्ले, नेस्ले मैगी। ठीक है, और मैगी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में, इट्स एन इमोशन। आपको पता ही है, ये कुछ चीजें हमारी इमोशन बन चुकी है, तो मैगी उनमें से एक है। ठीक है,
मैगी बस एक पिटीशन है जो इंडिया वाले अभी फाइल करने वाले हैं कि टू डिक्लेयर मैगी एज द नेशनल फूड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है भाई, समोसे की लेवल की पॉपुलैरिटी है। कहीं भी जाओगे आप यहाँ चले जाओ, शिमला मनाली वगैरह, आपको मिल जाएंगे मैगी स्टॉल्स। आप ड्यू में जाओगे वहाँ पे मैगी स्टॉल, हर तरह की मैगी भाई, हर तरह की मैगी, ठीक है। कैशू सिंह सबको खुश कर दिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। मुझे मालूम है इस क्वेश्चन, कोक मैगी भी है, चॉकलेट मैगी भी है, मोमोज मैगी, पता नहीं क्या क्या बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो मुझे मालूम है इस क्वेश्चन के बाद भूख लग गई है आपको, वैसे भी खाने का टाइम हो गया डिनर का, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एज यूजुअल जो हमारी प्रथा है, हमारी कक्षा की हमारी प्रथा है कि बैक टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट, विल रिवाइज द ऑल द क्वेश्चंस। आ जाओ, लेट्स डू द रिवीजन। ऑलराइट, सो नंबर 15, मैगी किसका ब्रांड है? इट्स नेस्ले। नेस्ले इज बेस्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो नेस्ले का ब्रांड है। उससे पहले 1608 में जहांगीर के कोर्ट में कौन सा वाला अंग्रेज आया था? ही वाज विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया था, ट्रेड परमिशन मांगने के लिए आया था। देन कैलिकट का रूलर कौन था जब पोर्चुगीज भारत में 1498 में आए थे, वास्को डी गामा जब आया था? तो आंसर है इसका जैमोरिन। जैमोरिन वाज द किंग, भगा दिया था उसने पोर्चुगीज को। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं उसको दिहांग, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है, दम ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है उसका। और चाइना में, तिब्बत में क्या, सैंगपो बोलते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन। नंबर 11 पे, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द यूटी ऑफ J&K, मेन रिवर कौन सी है? झेलम, बी पार्ट झेलम मेन रिवर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली केरला में है। कहाँ पे है? केरला में। नोन फॉर इट्स फ्लोरा। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है? रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। कहाँ पे? नोन फॉर इट्स टाइगर्स। और भी दूसरे और भी एनिमल्स हैं, बट टाइगर्स के लिए। देन आगे बढ़ते हैं। हु वाज द क्रिएटर ऑफ फेमस कार्टून कैरेक्टर्स चार चौधरी, साबू एंड बिल्लू? द करेक्ट आंसर इज प्राण कुमार शर्मा। प्राण कुमार शर्मा। उसके बाद कौन से वाले लीडर जो है रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट बन के इंडिया में आएंगे 26 जनवरी को? एंड द आंसर इज जो बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड कौन सी वाली कार कंपनी बोल रही है कि 2024 में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे, सारी की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी और हम डीजल का प्रोडक्शन 2024 तक बंद कर देंगे? आंसर है इसका वॉल्वो। उसके बाद इसरो के साथ किसने पार्टनरशिप की है एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए? क्लाउड टेक्नोलॉजी की इसरो ने किसके साथ की है? द करेक्ट आंसर इज अमेजन। अमेजन AWS। और 4 लाख का जो कवर है, इंश्योरेंस कवर है गिग वर्कर्स के लिए, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। देन वी हैव अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? रजनीश कुमार जी को। रजनीश कुमार, फॉर्मर चेयरमैन SBI। ऑलराइट। नेटोज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस कोल्ड वॉर इज कॉल्ड? क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर। क्या नाम है? स्टेडफास्ट डिफेंडर। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन बन गया है? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो इंडिया बन गया सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ Bangladesh. Okay, so this brings us to the end of the class, and I hope everything is clear to you. Dikshika has asked me a question: Who was the first billionaire? ऐसा कहते हैं, आई मीन जो आप गूगल पे भी डालोगे, आप कहीं डालोगे, तो फर्स्ट बिलियनर का जो नाम आता है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, वो है जॉन डी रॉकेफेलर, ठीक है। 20th सेंचुरी में जॉन डी रॉकेफेलर। पर सबसे रिचेस्ट आदमी का नाम है मानसा मूसा। पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, नोटेड हिस्ट्री में, वी हैव जॉन डी रॉकेफेलर, ठीक है। उनको कहते हैं पहला बिलियनर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आपको मैं PDF भेज दूंगा। PDF अपनी क्लास में मांग लेना, अपनी सेंटर पे मांग लेना, ग्रुप में डाल देना कि हमें चाहिए, या चले जाओ तो मांग लोगे वहाँ पे। PDF भेज दूंगा मैं आपको, रिवाइज कर लेना। एंड इस क्लास को अगर रिवाइज करना है तो कल इसका लिंक आ जाएगा अपने यूट्यूब पे। तो यूट्यूब IMS दिल्ली UG उस चैनल पे चले जाना, और वहाँ पे जाके आप अपना जो ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है गाइस। और पहले बाकी रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है तो भी उनको रिवाइज कर लेना वहाँ जाके, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स रैप द क्लास अप, और मिलते हैं आपसे अगले थर्सडे 8 to 9 के बीच में, ठीक है। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।